In the last class, like we discussed about liberalism, it was very important. Liberalism, where you have the freedom of thoughts. So those people, generally the middle class people in Europe, those who were of the little bit of educated background, those who were the business class, those who were the professionals, those who was the working class over their industries, they started developing a free thought of ideas, and they are known as liberalism. They have thought of liberalism in three aspects that we discussed. Was economic, when the freedom of market they talk about, for which they have developed a custom union also named as Zollverein. Then political liberalism, in which they said no to monarchy system or absolute power, a new democratic kind of democratic to nahi, a new kind of structure with a government with consent, voting rights to everyone, even to non-property men, even to women. That kind of demands were there with the political liberalism when they talked about, and then social liberalism, where the equality they wanted to create between the society. There's the too much division of the rich and poor, right to property, everything, all these things related to the society was their belief. Now conservatives हमने पढ़ा था, जो पुरानी चीज़ों में बिलीव करते थे, ट्रेडिशन होना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस है, इंस्टीट्यूशन जो हमारे पुराने बने हुए हैं उसकी इम्पोर्टेंस है, चर्च को फॉलो करना है, everyone has to be under the monarch and support the monarchy system, and all people, aristocrats, nobles, clergy, ये सब ही conservatives कहलाते थे. And what was their main belief? They don't accept change on large scale, उनको चेंज बिल्कुल पसंद नहीं था, एंड दे बिलीव देयर शुड बी अ ग्रेजुअल चेंज. इसको जरूर याद रखना है, देयर शुड बी अ ग्रेजुअल चेंज इन द there should be a gradual change wherever necessary, but you have to follow the monarchy. That was their belief. Now the next section of society, conservatism की अगर हम बात करते हैं, Napoleon got defeated in 1815 in the Battle of Waterloo. After it, European governments got driven by conservatism. They opposed radical changes in society. They supported some of the Napoleon's administrative changes, though they believed it could make state power more effective and strong, and a modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom. Now, what they're trying to say here? अब यहाँ पे फिर से हम कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं? जितना भी अभी हमने बात की, विच कंट्री वी आर टॉकिंग हियर अबाउट? फ्रांस. राइट. अभी भी हम फ्रांस पे ही हैं, आगे तक तो हम बढ़े ही नहीं है, अभी भी हम फ्रांस पे ही हैं. इफ यू सी व्हाट दे आर सेइंग ओवर हियर, फिर पुराने से हम इसको जोड़ेंगे. You will feel like I am repeating again and again the class 9th part because we have to give a base to France. फ्रांस में मैंने पहले भी बोला था when we started with the chapter, so many times the changes occurred in France. So we have to revise right from the starting so that you can come with the flow of the changes. So when we talked about France, सबसे पहले मोनार्की हम आपने देखी थी इसमें. उस मोनार्की को कौन सी रेवोल्यूशन ने हटाया था? रेवोल्यूशन 4 दिन से तो पढ़ रहे हैं उसके बारे में. अरे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हटाया था ना मोनार्की को फ्रांस से. फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो सब मेरे लिए ही छोड़ देते बोलने के लिए, सब कुछ मुझे ही बोलना है सुबह. मैम बोल रहा हूँ मैम, तुम्हारी आवाज नहीं आ माइक रही होगी खराब ना. है मैम थोड़ा. बाकी जो बैठे हैं यहाँ पे 30, 29, 27 बोल सकते हैं ना बीच में. मैम फ्रेंच रेवोल्यूशन. उसके बाद क्या, मतलब दे ट्राइड टू मेक द नेशन और गवर्नमेंट बाय कंसेंट अ डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉलिटिकली, बट डज इट एक्चुअली हैपन? एक नेशनल असेंबली बना दी थी, थोड़ा सा चेंज, माइन्यूट चेंज आना शुरू हुआ था, इससे क्या एस्टैब्लिश हो गई यहाँ पे? मोनार्की एस्टैब्लिश हो गई. मैम योर वॉइस यस इज ब्रेक. मैम.
due to Napoleon. Now again, what they are saying, the first thing, नेपोलियन को जो आसपास के कुछ जो किंगडम्स थी जो कॉन्जर्वेटिव्स थे, नेपोलियन सबके लिए खतरा बनता जा रहा था. खतरा क्यों बन रहा था? बिकॉज ही वॉज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग एज एन आर्मी ऑल्सो. ही वॉज इनिशियली एक्सेप्टेड बाय द पीपल. इनिशियली एक्सेप्टेड, याद रखना, इनिशियली एक्सेप्टेड बाय द पीपल. तो बहुत सारे एरियाज उसके कंट्रोल में आते जा रहे थे. ही वॉज बिकमिंग पावरफुल. He has done administrative changes which were developing France a lot. तो वो जो बाकी लोग थे, जो बाकी ये जो कॉन्जर्वेटिव्स थे, ये कॉन्जर्वेटिव्स को नेपोलियन खतरा लगने लगा था. तो इन्होंने क्या किया, ये आपस में मिले. दे सेट कि हमें नेपोलियन को हराना जरूरी है. फ्रांस को हमें कैसे बांटना वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमें मिलकर नेपोलियन को हराना जरूरी है. सो दैट इज व्हाट दे थॉट ऑफ. क्योंकि उनको बहुत स्ट्रॉन्ग ये दिख गया था कि अगर हमने नेपोलियन को अभी नहीं रोका तो नेपोलियन वुड बी टेकिंग ओवर कंप्लीट यूरोप इन सम टाइम. ठीक है. सो दैट इज व्हाई व्हाट दे डिड, उन्होंने नेपोलियन को मिलकर आपस में, चाहे वो दुश्मन थे चाहे वो नहीं थे, बट जो सबको उन्होंने मतलब दे डिफीटेड नेपोलियन. और जब एक बार उन्होंने नेपोलियन को हराया, किसने हराया? कॉन्जर्वेटिव्स ने हराया, जिनकी जो पुरानी सोच वाले लोग थे. तो क्या वो यहाँ पे फिर से नेशन स्टेट बनाने का सोचेंगे? क्या आ जाएगा यहाँ नो पे? मैम. No, ma'am. नो मैम, मोनार्की आ बार जाएगा. बार अगर आप देखोगे, रेवोल्यूशन तो हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आ क्या रही है? घूम फिर के फिर से मोनार्की आ रही है. बिकॉज इट वाज हैविंग सो स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिशमेंट इन यूरोप कि वो खत्म करना मुश्किल हो गया था उसको. सो व्हाट दे डिड, अब फिर से उन्होंने मोनार्की सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया. ठीक है. अब क्योंकि वो कॉन्जर्वेटिव्स थे, सो दे अपोज द रेडिकल चेंजेस. रेडिकल मतलब अगेन सडन चेंज, कभी वो एक्सेप्ट नहीं करते थे. उन्होंने वापस से यहाँ पे मोनार्की एस्टैब्लिश की, कॉन्जर्वेटिज्म एस्टैब्लिश किया. लेकिन they believed that Napoleon has done these important administrative changes जिसकी वजह से फ्रांस में डेवलपमेंट हुआ है. सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाकी चीजें तो मोनार्की सिस्टम की कर दी, बट इसके साथ साथ जो नेपोलियन की एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे उसको एक्सेप्ट कर लिया कहीं ना कहीं. उसमें से जो पॉलिटिकल इक्वालिटी वगैरह थी जो इनिशियली थोड़ा बहुत दिया था, जहां जहां हमको लगा कि दिस इज नॉट एज पर द मोनार्की सिस्टम, उसको हटा के रेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस दे एक्सेप्टेड. तो इट वाज अ कंजर्वेटिज्म अगेन having monarchy system over here, but with a little bit support to the Napoleon's administrative changes. ठीक है. क्यों किया था उन्होंने? उन्होंने लोगों के लिए सोच के नहीं किया था. they were not having at all this belief at all कि इससे लोगों का कुछ भला होगा. उन्होंने इसलिए किया था because they believe that it could make state power more effective and strong. उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए, अपनी स्टेट के लिए किया था. And then the modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism, serfdom, इन चीजों को थोड़ा थोड़ा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था. और बाकी एज इट इज मोनार्की सिस्टम वाज एस्टैब्लिश. तो क्या हुआ, फिर से एक चेंज तो आ रहा है फ्रांस में, लेकिन रूलर बदलता जा रहा है. अगर आप देखोगे इसको इन अ ब्रॉडर सेंस, इफ यू सी, सिर्फ बीच में थोड़े टाइम के लिए जो नेशनल असेंबली बनाई, थोड़ा टाइम के लिए लोगों ने इलेक्शन वगैरह किए, इसको छोड़ के again and again change is coming, but one after another only monarchy was establishing over here. Is it clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Now, when they defeated Napoleon, then they went for a Treaty of Vienna, where they discussed that in 1815, conservative nations, this ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, इन चारों ने मेनली, इनको याद करने का तरीका है, इसको बाद जो बोला गया है,
सिर्फ याद करने का तरीका, सो दैट यू विल रिमेंबर द कंट्रीज, अदरवाइज ऐसे कंट्रीज को याद करना मुश्किल हो जाता है. सो Britain, Russia, Prussia, and Austria, these all conservative nations, they collectively defeated Napoleon and met at Vienna to draw up a settlement for Europe. कि अब जीत तो लिया हमने, तो चारों ही बड़े बड़े nations थे. So कैसे सेटल करना है, कैसे वहाँ पे फ्रांस को सेटल करना है, which areas would be taken by which particular part will be taken by which country, उसके ऊपर पूरा सेटलमेंट करने के लिए बैठे वियना में, ऑस्ट्रिया में, and they went for Treaty of Vienna. The Congress was hosted by Australian Chancellor Duke Metternich. इसको आप याद कर लोगे, important है ये for 1 mark. Many times they ask, the Treaty of Vienna was under the, who was the chancellor over there? होस्ट किया था ऑस्ट्रिया ने, वियना में थी, वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, तो उन्होंने होस्ट किया था और वहां पे उसको ड्यूक मेटर्निश को चांसलर बनाया था उस मीटिंग का. उसको आप बुक में भी है, जस्ट मार्क इट ओवर देयर, इट्स एन इम्पोर्टेंट वन. Now what was there under this particular objective of this Treaty of Vienna? To bring back monarchy and undo the changes done by Napoleon. सिर्फ उस चेंज को छोड़ के जो कंजर्वेटिव्स को पसंद आ रहा था, rest of the changes they wanted to take back, make it undo and to bring back monarchy. That was the objective of Treaty of Vienna. Again 1 mark के लिए objective. किया क्या? What were the steps taken under that treaty? The Bourbon dynasty was restored. फ्रांस के ऊपर दोबारा से यहाँ पे बॉर्बन डायनेस्टी को बिठा दिया to power, and France lost the territories it had annexed under Napoleon. What decision they have taken? जो original फ्रांस था वो रहेगा. नेपोलियन ने अगर ये अलग अलग कुछ एरिया कैप्चर किए थे अपने अंडर, ये वापस उनको बाकी जहां से उन्होंने कैप्चर किए थे उनको वापस दे दिए जाएंगे. So नेपोलियन का कैप्चर्ड एरिया will be lost from France, and जो already France था originally before the Napoleon came and it started annexing the different areas, that will be there under the Bourbon dynasty. As a monarchy, as an absolute power, they put over Bourbon dynasty. Series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion. फिर इन्होंने क्या किया, ये फ्रांस है, इन्होंने कहा फ्रांस को कि लोग जो है ना ये डरते थे एक्चुअली सब लोग. इन्होंने देखा कि इट्स द ओनली नेशन जहां पे लोग बार बार रेवोल्यूशन करते हैं, अगेन एंड अगेन दे गो अगेंस्ट मोनार्क. तो व्हाट दे डिड, लोगों को कंट्रोल और यहाँ फ्रांस को कंट्रोल करने के लिए कि फ्रांस दोबारा से ऐसे एक्सपैंड होना ना शुरू हो जाए, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो उसकी बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज पे यहाँ पे अलग अलग सिटीज बना दी. ये ऐसे उसके बाउंड्रीज पे सिटीज बना दी, स्टेट्स बना दी जिसको कह सकते हो आप. और यहाँ पे जो यहाँ पे रूल कर रह रहा है, दे वर कीपिंग अ वेरी स्ट्रिक्ट आई ऑन फ्रांस कि किसी भी तरह से यहाँ के लोग एक्सपेंशन ना शुरू कर दें. तो उसको एक कंट्रोल करने के लिए उसकी चारों तरफ स्टेट्स की बाउंड्री बना दी कि दोबारा से ये अपनी एक्सपेंशन ना हो पाए. द किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स वाज सेट अप इन नॉर्थ एंड जिनेवा वाज एडेड टू पीडमोंट इन द साउथ. फ्रांस से जो भी उसके एरियाज थे उसके कंट्रोल के, दैट वाज टेकन और उसको इन्होंने आपस में बांटना शुरू कर दिया. रशिया वाज गिवन टेरिटरीज ऑन द वेस्ट फ्रंटियर. यस सर. Ma'am, in the second point, ma'am, series of states were set up. Ma'am, in this point, ma'am, you said that, ma'am, on the boundary of the France, ma'am, and the cities were developed so that the ma'am France could not expand. So, ma'am, these cities are of France or of other country? Other. उन्होंने अपने जो साथ के नेशंस थे, जो साथ के एरियाज थे, स्टेट थी, उन्होंने अपने एरियाज यहाँ पे एक, जैसे हम अभी हम डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, हम बॉर्डर्स के ऊपर आर्मी बिठा देते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ अस. लेकिन वहां पे हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफाइड एक नजर रखने के लिए हमने बॉर्डर पे आर्मी बिठा दी. दैट काइंड ऑफ फीचर वाज देयर कि स्टेट्स डेवलप कर दी, सीरीज ऑफ स्टेट्स, उसको एरिया को खाली नहीं छोड़ा, उनके अपनी ही स्टेट्स को डेवलप कर दिया और वहां पे प्रॉपर उनके ऊपर नजर रखी जाती थी. इट वाज नॉट ऑफ कंसिडर्ड ऑफ फ्रांस.
So, ma'am, the France could expand these cities also, ma'am. The France could defeat these cities also, ma'am, by war. हाँ तो कि कौन लड़ेगा ना वॉर? अब ये वॉर लड़ने के लिए नेपोलियन था, नेपोलियन वाज डिफीटेड, अब कौन लड़ेगा वॉर? नाउ द मोनार्क वाज अगेन ऑफ द बॉर्बन डायनेस्टी, जो इन्हीं सबका मिला जुला फ्रेंड था। Okay, ma'am. यही किया ना उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना में, जब जब नेपोलियन को हराया उसके बाद उन्होंने अपना वहां पे रूलर रख दिया, और सब जितने भी बाकी नेशंस थे, ये जो भी हमने अभी पहले पढ़े थे, जो बाप नेशंस थे, दे ऑल डिसाइडेड कि फ्रांस को अब भरने नहीं देंगे, फ्रांस को कंट्रोल करना पड़ेगा टुगेदर। सो दैट इज व्हाट दे ट्राई टू डू। Okay, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो स्टेट्स बनानी शुरू की, वो एरियाज जो फ्रांस ने पहले एक्सपेंशन किया हुआ था उसके एरियाज को मिलाया, बट इसको अब फ्रांस में नहीं माना जाता था। दीज एरियाज वर गिवन टू द डिफरेंट, जो भी आपके डिफरेंट किंगडम्स थी, उनको उनमें बांटना शुरू कर दिया उसको। और another thing of this, under this treaty, द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, जो नेपोलियन ने बनाया था, 39 स्टेट्स को जोड़ के उसने अपना एक एरिया जो डेवलप किया था उसको एज इट इज रख दिया गया। इट वाज नॉट टेकन अप बाय, मतलब इट वाज नॉट स्प्लिट अगेन, it was left untouched, and in the east Russia was given part of Poland while Prussia was given the portion of Saxony. Basically ये आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। Here what they try to say कि जो भी फ्रांस में नेपोलियन ने जो भी कैप्चर किया था, उन एरियाज को सारे नेशंस ने अपने अपने हिसाब से, नॉर्थ तुम्हारा, वेस्ट मेरा, ईस्ट मेरा, ये वाला एरिया मेरा, यहाँ पे हम एक स्टेट बना देते हैं, इसको मैं आई विल लुक आफ्टर, दिस वुड बी just for the reason that the France should not expand further. These type of things were being done over here. Complete monarchical structure जो पहले था, धीरे धीरे अभी उससे भी ज्यादा खराब ही होने वाला था, क्योंकि फ्रांस को और कंट्रोल किया जाने लग गया। ये क्वेश्चन ना बहुत कॉमनली आता है बोर्ड में, दैट इज व्हाट पुट ओवर हियर, एंड इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं, और इसका आंसर मोस्टली बच्चे गलत देकर आते हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग, इसको आप स्क्रीनशॉट चाहे लेकर रख लो। कंजर्वेटिव रिजाइम्स सेट अप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। व्हाट डज दिस मीन? ये जो 1815 में कंजर्वेटिव रिजीम्स आप देख रहे हो जो फ्रांस में सेटअप हो रही थी, दैट वाज ऑटोक्रेटिक। इसका मतलब क्या है? What they're saying, the conservative regime set up in 1815 were autocratic. This means that they did not tolerate criticism and dissent. ये जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, this BAP nations, जब इन्होंने बॉर्बन डायनेस्टी को वहां पे एस्टैब्लिश किया, what this question actually mean? They were conservatives only. They set up the Bourbon dynasty which were following the conservatism only. वो ऑटोक्रेटिक थे। ऑटोक्रेटिक सिर्फ यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑटोक्रेटिक क्या थे, क्या होते हैं ऑटोक्रेटिक, हमने पहले भी पढ़ा था। नॉट टॉलरेटिंग द क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, कोई भी इस राजा की, मोनार्क की बुराई नहीं करेगा, क्रिटिसाइज नहीं करेगा। दैट इज द बेसिक। और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन उन्होंने सिर्फ एक वहां से ले लिया, ट्रीटी ऑफ वियना से ले लिया, कंजर्वेटिव रिजीम से ले लिया। पूछ क्या रहे हैं? दे आर जस्ट आस्किंग अबाउट द मीनिंग ऑफ ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में पहली चीज, they do not tolerate the criticism, sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government। जो इस monarch को क्वेश्चन करे, सवाल पूछे किसी भी तरह की, इसकी पावर को डाउन करने की कोशिश करे, उस एक्टिविटी को वहीं खत्म कर दिया जाए। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज ऑटोक्रेटिक। impose the censorship law to control what was said in newspaper, books, plays, songs reflected the ideas of liberty and freedom। जहां जहां इन सारे मीन्स में से आपको लिबर्टी या फ्रीडम की आवाज भी आ जाए, उसको वहीं बंद कर दिया जाए, वहीं सेंसर कर दिया जाए। दैट इज द थर्ड पॉइंट।
if such question comes, just understand it's simply asking about the autocratic meaning of what is the meaning of actually how the autocrats work. They work in these way only. They don't tolerate the criticism at all. They always curb those activities that question their legitimacy. They question the autocratic governments, and they impose the censorship. Ma'am, Yes. ma'am, can you explain the first point again? First point is saying that they did not tolerate criticism and dissent. अब monarch की कमी है अगर कोई निकालेगा, monarch को क्वेश्चन करेगा. आप हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर देते हैं ना. अभी आपने ये रूल निकाला, अभी ये किसान आंदोलन क्या करे, दे क्रिटिसाइजिंग द लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट. सच टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म, ये तो बहुत बड़ी बात है. छोटे छोटे क्रिटिसिज्म भी, दैट मोनार्क, व्हाई मोनार्क को वो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. आपने ऐसा डिसीजन लिया, वो गलत है. या वो क्वेश्चन नहीं कर सकते आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया. वो क्वेश्चन नहीं कर सकते कि व्हाई द इक्वल राइट्स आर नॉट गिवन. They cannot question that why the right to property is not given. Why to maintain the your जो royal families हैं, generation to generation, why to give it the birth privileges, कुछ भी question नहीं कर सकते. वो tolerate ही नहीं करते. That is the meaning over here. Is it clear? Yes, ma'am. Any doubt? Yes, ma'am. Till here what we discussed, again I am repeating. फ्रांस के मतलब अगर हम फ्रांस के कंटेक्स्ट में बोले, व्हाट वी आर डिस्कसिंग विद व्हाट वी हैव डिस्कस्ड 9 से लेके अभी तक, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस बिल्कुल याद कर लो दिमाग में. पहले मोनार्की, फ्रेंच रेवोल्यूशन केम अप, लिटिल बिट ऑफ लिबर्टिज्म, थोड़ा सा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा नेशन स्टेट का डेवलपमेंट होना ही शुरू हुआ था. नेपोलियन केम, री-एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोनार्की. Napoleon defeated, again re-establishment of conservatives and monarchy on more strict way. Treaty of Vienna happened, and with which they tried to curb the activities, all kind of things which were there in the France को control करने की कोशिश की. Autocratic structures था. Autocratic structure 18th century में वहाँ पे चल ही रहा था. The same continued in France. After that the work of revolutionaries came. फिर revolutionaries ने आना शुरू कर दिया, who wanted to be nation state societies, जो पसंद करते थे. उनके different एकदम radical ideas होते थे to make the nation states. Like you will read about Joseph Mazzini. He was the one जिसका बहुत बड़ा रोल था to make the nation states. उसके बाद फिर अब 1830 से that then we will study कि अब age of revolution start हो गई, and one after the another nations in Europe started developing, क्योंकि अब middle class बहुत strong आती जा रही थी, and they were very determined कि conservatives को हमें हराकर जीतना ही है. So that is your emergence हुआ. फिर फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन आया. अब फिर से आप फ्रांस को देखोगे, फिर से फ्रांस में अब रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है. दिस इज द अनदर रेवोल्यूशन that the people of France started. So July Revolution बोलते हैं इसको. How they built the nation state, बीच में बेल्जियम कैसे बना, बहुत सारी revolutions है. फिर ग्रीक कैसे बन गया, सबकी अब after that one after the another revolutions you will study. So France, ग्रीक, बेल्जियम, और उसके बाद आपका जर्मनी, इटली एंड ग्रेट ब्रिटेन. ठीक है, लास्ट का इतना मुश्किल नहीं है. थोड़ा सा ये शुरू का पार्ट ज्यादा थोड़ा सा खिचड़ी की तरह लगता है. वो भी इसलिए लगता है बिकॉज ऑल द चेंजेस वन आफ्टर द अनदर इज कमिंग इन द फ्रांस. बार बार हम पिछले साल से फ्रांस ही पढ़ते जा रहे हैं कि फ्रांस में ये हुआ, फ्रांस में ये हुआ, अब ये हो गया, अब ये हो गया. सो दैट इज व्हाई दैट फ्रांस क्रिएट्स कंफ्यूजन. ठीक है, इसको हम कल करेंगे. अटेंडेंस आई हैव टेकन ऑलरेडी. ओके, so I'll end the class. Good morning, everyone. Good morning.